See, symmetry is a very important chapter as exam point of view is concerned. So any object which is looking good, and that is because of presence of symmetry. Symmetry is a term associated with the natural beauty. Symmetry is equal to even plus dimension. दो चीज है इसमें summation है. One is dimension, another is even, that is similarity. So even plus dimension, that is called symmetry. Now similarity, or you can say resembleness, or you can say object which is looking perfect, and that is because of the symmetry. Left and right limbs of the or you can have a swastikas, or you can have a balls that is having rounded shape. Okay, or human body is a bilateral symmetrical. Our left part of the body is mirror image of the right part. So similarity is very useful in determining structure of atom, even in the quantum mechanics and in the spectroscopy. Stereochemistry, we had also seen this symmetry. See, symmetrical plane is there, then we can judge the proton whether they are diastereotopic or whether they are anisotropy, or they may be homotopic. Or sometimes, see, which compound is chiral or which compound is achiral, that is also decided using symmetry. If molecule is symmetrical, then it is achiral. If it is asymmetrical, then it may be chiral. So symmetry is a very useful. All these things is concerned. Now, in case of structure of atoms, or you can say molecules. So in that molecules, of course, certain symmetry elements are there, and because of that, that molecule is also found to be symmetrical. Look at this object. This object is a bilateral symmetric one. This is also symmetric one, and therefore it is looking good. Okay, so these all are the example of this symmetry. You can have a mirror image from the center here. So why this object is looking good? Because they are having exactly perfect plane of the symmetry. So symmetry, it is very important in case of structure of the molecule. When you determine the structure of the molecule, here you can have a this sigma plane which bisect the molecule from the center. You can put a sigma plane in the center, so you are getting a particular mirror image type relationship. So symmetry is like here. Okay, so it bisect the molecule. So see, entire symmetry is based on the symmetry element. Why any molecule is symmetric? Because it has certain elements. The element is responsible for symmetry. So two terms are there, two very important terms. One is symmetry element and another one is symmetry operation. What is called symmetry element? So element about which, when you apply any element to molecules, that molecule either give you its equivalent structure or may give you same structure. दो चीज मिलना चाहिए. See, either you are doing any symmetry operation using any of the element. If you are doing symmetric process using any of element like identity E, like rotation axis, like sigma plane, or you may have a point of inversion. If you are doing any symmetry operation, you are doing symmetry operation using any of this symmetry element, then result of that symmetry operation is either original structure or it may be equivalent structure. Okay, जो either same structure मिलना चाहिए या तो उनको equivalent है वही structure मिलना चाहिए. So that's element by which we have performed rotation, we have performed mirror image, we have performed center of symmetry. So that element is called symmetry element, and operation that is called symmetry operation. Okay, that is very important terms. So each symmetry has a symmetry element corresponding to action. Symmetry element is a set of points that do not change their position during symmetry action.
A series of points in a rotation that do not change their position from or rotation axis. Similarity is set of points of change of their position in okay, so in this case, a very important terms here is either you are giving rotation or you are applying mirror plane, so molecule does not change their original position. Either molecule will give you equivalent structure or may give you same structure. For example, say this is the H2O molecules having band shape. You just apply C2 axis, plus C2 means anti-clockwise rotation and minus C2 means clockwise. यहाँ प्लस एंड माइनस साइन जो है वो हम अपोजिट यूज करेंगे, क्लॉकवाइज के लिए माइनस साइन लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस साइन। वाटर मॉलिक्यूल में तो प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि 180 एंगल पे रोटेशन देंगे इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। 180 पे H1 जो है वो H2 की जगह जाएगा ऐसे, एंड H2 है वो H1 की जगह। सो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। हाइड्रोजन को मैंने लेबल किया है, अगर मैं लेबल नहीं करता तो दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। सो यू आर गेटिंग सी सेम स्ट्रक्चर और यू मे गेटिंग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, so that is we call this entire process is called symmetry operation, and this element is called symmetry element. This is called symmetry element. Entire process is called symmetry operation. But अगर आप सपोज ऐसे रोटेशन देते हैं इस मॉलिक्यूल को H1 और H2, suppose you are applying rotation about this axis at 180, so what happens in this case? दो हाइड्रोजन जो बिलो द प्लेन है वो अबव द प्लेन चले जाएंगे। सो इन दिस केस यू कैन नॉट हैव ए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है उसको रिलेटेड ये इसकी तरह सेम स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज नॉट अ सिमिलर स्ट्रक्चर और इट इज नॉट अ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, एंड देयरफॉर यू कैन नॉट से दिस इज एज ए वैलिड सिमेट्री एलिमेंट। ओके, you cannot take this as a symmetry element. This process is not called symmetry operation. तो ऐसे सिमेट्री एलिमेंट, कितने सिमेट्री एलिमेंट है? सो मेन 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। फर्स्ट वन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ई एलिमेंट मींस नथिंग इज डू इन मॉलिक्यूल, आपको कुछ नहीं करना है, जो मॉलिक्यूल जैसे दिया है इट इज उसको लिखना है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। और यू कैन से रोटेशन इज गिवन एट 360 पे आप रोटेशन दे दो, पूरा 360 का सर्कल होता है, 360 पे रोटेशन देंगे तो कोई चेंज मॉलिक्यूल में नहीं होगा, सो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट है दैट इज रोटेशन एक्सिस। इट मे बी प्रॉपर रोटेशन एक्सिस or it may be improper rotation axis. Rotation about at particular angle using particular axis, so that is called rotation axis. थर्ड जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिग्मा प्लेन। फोर्थ वन है वो इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, मींस इसमें दो चीज साथ में करेंगे, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। इम्प्रॉपर यहाँ पे जो इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस है मींस दो चीज इसमें साथ में करेंगे, पहले कोई नॉर्मल एक्सिस है जैसे प्रॉपर रोटेशन एक्सिस है उससे रोटेशन देंगे, बाद में उसको परपेंडिकुलर जो प्लेन है उससे रिफ्लेक्शन करेंगे। ये दोनों प्रोसेस साथ में करेंगे तो उनको इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस बोलते हैं। एंड लास्ट इज इन्वर्जन, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। तो ये जो चार सिमेट्री एलिमेंट है इंपॉर्टेंट, उसकी स्टडी 1 by 1 करना है कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड symmetry, the first fundamental things is going to learn all these symmetry element with proper way. So first is say identity, आपको पता है आपको मॉलिक्यूल में कुछ नहीं करना है, that is called identity. Identity means nothing is due in molecule. Just a minute. Now if you look at here, identity means nothing is due in molecule. मॉलिक्यूल में आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेशन। इट इज वेरी सिंपल जॉब, नो चेंज इन द स्ट्रक्चर। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स और एवरी मॉलिक्यूल्स possesses सिमेट्री, कोई ना कोई तो सिमेट्री एलिमेंट उसमें होगा ही। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं तो आपको सपोज ये ऑपरेशन करना है आइडेंटिटी,
That means rotation is given at angle 360. That is nothing is do in molecule, as it is लिख दो. अगर आपके पास BF3 है प्लेनर मॉलिक्यूल, BF3, BF1, F2 and F3. सपोज आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हो आइडेंटिटी, so what is its result? Similar structure, nothing is changed in this structure. See, प्लेटिनम Cl4 है, अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो रिजल्ट बिकम सेम स्ट्रक्चर, नथिंग इज डू इन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. आई थिंक थोड़े बहुत हमने करवाए थे आपको, है ना, रेगुलर लेक्चर में. यस सर. ओके गुड, तो उसको थोड़ा क्विकली लगे. सो आफ्टर आइडेंटिटी देन नेक्स्ट इज रोटेशन एक्सिस. रोटेशन एक्सिस में वो भी आपको पता है, सी रोटेशन एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Cn, वेयर n इज नथिंग बट नंबर ऑफ फोल्ड. 360 का सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ फोल्ड. एंड Cn इज a proper rotation axis. प्रॉपर रोटेशन एक्सिस. अगर आपको n कैलकुलेट करना है तो n के लिए फॉर्मूला है 360 अपन थीटा, या तो थीटा कैलकुलेट करना है कितने एंगल पे रोटेशन देंगे, सो इट्स 360 अपन n. सपोज BF3 है, इसमें चलो 360 का सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, सो n इज इक्वल टू 3 आएगा, n इज इक्वल टू 3, सो योर एक्सिस बिकम C3, और यहाँ पे 3 लिखोगे तो एंगल ऑफ रोटेशन बिकम 120. तो 120 पे आप रोटेशन देंगे C3 प्लस, तो एंटी क्लॉकवाइज एक वक्त रोटेशन 1 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, तो F1 यहाँ पे आ जाएगा, F2 यहाँ पे, F3 इधर, सेकेंड टाइम्स C3 प्लस अगेन F1 comes to position of F2 एंड थर्ड टाइम आप रोटेशन देंगे तो क्या होगा, थर्ड टाइम एंटी क्लॉकवाइज सेम स्ट्रक्चर मिलेगा. तो ऐसे लिखते हैं C3 3 इज ए नंबर ऑफ टाइम्स रोटेशन इज इक्वल टू E. इसको छोड़ के इसमें C2 एक्सिस कितनी है BF3 में, C2 एक्सिस मींस रोटेशन इज गिवन एट 180. इसमें कितनी C2 एक्सिस है, 3 है ना. ओके 3 है. आप F1 से रोटेशन देंगे तो ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेगी, यहाँ से रोटेशन देंगे तो ये दोनों, सपोज कोई भी आप C2 ले लो, F1 वाली C2, तो F1 अपनी पोजीशन पे रहेगी, बाकी जो दो एटम है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे इसी तरह. सो इन दिस केस देयर आर 3 C2 एक्सिस. C2 एक्सिस आर देयर. F1 है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे F2 आ जाएगी, यहाँ F3. प्लेटिनम Cl4 में जो सेंट्रल वाली एक्सिस है वो C4 होगी, क्योंकि 360 का सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में. C2 एक्सिस कितनी है इसमें, 4 है. एक तो कौन कौन से एटम में से पास होगी, फर्स्ट वन Cl1 है, 2 ऐसे होगी. ओके, एक Cl1 प्लेटिनम Cl3 में से पास होगी, दूसरी Cl2 प्लेटिनम Cl4 में से पास होगी, बाकी की जो 2 है वो ऐसे सेंटर में से पास होगी. सही, तो टोटल 4 C2 है. अभी हाईएस्ट पोल एक्सिस मींस मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन. हाईएस्ट पोल एक्सिस कौन सी एक्सिस है, हाईएस्ट पोल्ड C4 सर. तो इसको क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पोल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. और अगर हाईएस्ट पोल एक्सिस एक्सिस ज्यादा है तो सब्सिडियरी एक्सिस. हाईएस्ट पोल एक्सिस मोर देन 1 है, सपोज C4 2 या 4 थी तो कौन सी एक्सिस लगे, से जो सबसे ज्यादा एटम से पास होगा. Okay, so in that case, principal axis is passing through maximum number of atom. Highest pole axis passing through maximum number of atom. Good. So that is called principal axis. So imaginary axis about which once you give the rotation, then you are getting either original structure or equivalent structure. It is called
axis of rotation. C1 means nothing is due in molecule. See, 360 पे rotation करोगे original structure मिल जाएगा. That is you are getting identity E element. Plus sign used for anti-clockwise rotation, minus sign is for clockwise rotation. चलो in this case C5 आपने एक बार rotation दिया, दूसरी बार rotation देंगे तो 1 2 की जगह पे जाएगा C. Third time rotation 1 goes to position of 3, fourth time, and this is fifth time rotation. What you are getting? You are getting The same molecule, identical one. identity, इसलिए C5 raised to 5 is equal to E लिखा है. C2 axis कितनी है इसमें? ये तो एक C2 यहाँ पे आगे चल, ये दूसरी 5 sir. okay, 5 होगा. So 5C2 is in the plane. Okay, 5C2 जो है वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उसके प्लेन में रहेंगे, और जो C5 है which is on your side, that is perpendicular to plane of screen. तो ऐसे 5C2 है that is perpendicular to C5. चलो symmetric plane किसको बोलते हैं? So see, molecule is divided by plane and the same atoms or atoms are found in the other half, reflecting all the atom in one half of the plane from the plane. Then the plane is called a symmetric plane, or an imaginary plane in a molecule that divide molecule into two equal part. So that imaginary plane is called sigma plane, symmetric plane. See, ये देखो, इसका यहाँ से सेंटर में से दो पार्ट करेंगे तो आपको दो इक्वल पार्ट मिलेंगे ऐसे. सी, look at here. So this is called plane of symmetry. This is called plane of symmetry. Look at here. Our body is bilaterally symmetrical. So तीन तरह के plane होते हैं. First one is sigma h, that is called plane which is perpendicular to principal axis. Sigma b means plane which is passing through principal axis, that is plane which is parallel to principal axis. And another one is diagonal plane. Diagonal plane means वो सामने वाला ग्रुप है उसको कनेक्ट करेंगे. Most of जो है वो it is bisect at right angle to principal axis and C2 axis. मॉलिक्यूल में अगर C2 एक्सिस है एंड प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसको राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा. 2 times reflection will result into original structure, that is the main phenomenon of plane. If you are applying any plane, then you are getting one time mirror image, second times you are getting original structure. So if you are applying 2 times plane or 4 times plane or 6 times or 8 times, if you are applying even number of times plane, then you are getting identity. पहले आप मिरर इमेज लिखते हो, फिर से जो मिरर इमेज मिलती है उनकी मिरर इमेज लिखते हो तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन? सो प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल प्लेन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, देन इट इज ओनली वन, नॉट मोर देन वन. सी रिमेंबर, वर्टिकल प्लेन एक से ज्यादा हो सकता है. अगर मॉलिक्यूल में हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वो एक ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक है तो उनको परपेंडिकुलर एक ही प्लेन आएगा. Horizontal plane is present in the molecule, then it is only one in number. एक से ज्यादा कभी भी horizontal plane नहीं हो सकता. But if sigma h is present and also sigma v is present, दोनों plane है, एक कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है कि चलो सिग्मा h भी है एंड सिग्मा v दोनों प्लेन है, वर्टिकल प्लेन भी है एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है. सो इन दैट केस नंबर ऑफ सिग्मा v प्लेन इज इक्वल टू order of principal axis. Number of sigma v plane is equal to order of principal axis. जितने सिग्मा v प्लेन है वो आपका, सपोज आपके प्रिंसिपल एक्सिस C3 है तो सिग्मा v प्लेन कितने आएंगे? 3 सिग्मा v. सपोज आपके प्रिंसिपल एक्सिस C4 है तो नंबर ऑफ सिग्मा v कितने हो गए? 4 सिग्मा v. सपोज प्रिंसिपल एक्सिस C5 है, देन नंबर ऑफ सिग्मा v 5 सिग्मा v हो गए. बट ये कब पॉसिबल होगा? जब मॉलिक्यूल में कौन सा प्लेन है? सिग्मा एच है. ऐसे एग्जांपल चलो लेते हैं. यहाँ पे सपोज BF3 है आपके पास, तो BF3 में तीनों एटम ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, तो तीनों एटम एक ही प्लेन में रहेंगे. सी, ऑल दिस 3 एटम्स आर इन वन प्लेन. तो सेंटर में से पास होती जो एक्सिस है वो C3 एक्सिस है,
तो उसको परपेंडिकुलर है, पेपर का प्लेन है वो सिग्मा एच है। तो चलो इस मॉलिक्यूल में सिग्मा एच है, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी साइड है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल या तो उसमें से पास होता है ऐसा कितना प्लेन है? 3 3 है। फर्स्ट प्लेन जो है वो किस एटम में से पास होगा? फर्स्ट वन बोरोन एंड फ्लोरीन F1 okay, F1. See, this is 1, this is 2, this is 3. इसमें ये इसलिए है कि इसमें सिग्मा एच प्रेजेंस है, इसलिए। जैसे सपोज से प्लेटिनम Cl4 है तो उसमें भी सिग्मा एच है। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी साइड है, उनको परपेंडिकुलर प्लेन जो है AC4 है, उसको परपेंडिकुलर AC2 एक्सिस है, 4 C2 एक्सिस है। C4 आपकी साइड है, उसको परपेंडिकुलर ए प्लेन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, दैट दिस इज कॉल्ड सिग्मा एच। तो इसमें सिग्मा भी, इसमें भी कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से 4? फर्स्ट जो 2 है वो ये Cl1 प्लेटिनम और Cl3 में से पास हो गए, एक ये। दूसरा सिग्मा भी जो है वो ये रहेगा। वेर इज थर्ड वन? सर प्लैटिनम के ऊपर से बस, वाला। मतलब चारों क्लोरीन। हाँ between C1 C4. ओके, सो बिटवीन दो अलग अलग जो नजदीक वाले Cl है, कंजुगेटिव Cl1 एंड Cl2, तो उसके बीच में से जो पास होता है वो प्लेन है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा V4. So in this way, see 4 sigma V planes are there. ये देखो BF3 मॉलिक्यूल है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, उसको परपेंडिकुलर प्लेन दिया है, दैट इज आपकी मोबाइल स्क्रीन जो है वो आप देख सकते हो। इसमें सिग्मा V तो ऐसे है ही 3 पैरेलल प्लेन जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा और एक्सिस में से पास होगा, बट ये सिग्मा H है। व्हाट इज सिग्मा V? Sigma V means plane which is passing through principal axis, or you can say parallel to principal axis. H1 and H2 है, तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसमें से पास होता हुआ ऐसे एक ये प्लेन है, दूसरा ये प्लेन, दोनों सिग्मा V है। सी ये भी प्रिंसिपल एक्सिस में से पास होता ही है। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी मोबाइल की स्क्रीन में है, तो तीनों एटम मोबाइल की स्क्रीन में ही है। एक मिरर प्लेन है, एक से तीनों एटम को कवर करता हुआ प्लेन है, तो ये दोनों है जो सिग्मा V प्लेन है। और थर्ड प्लेन आप ऐसे सपोज प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर चेक करो है या नहीं, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसको परपेंडिकुलर आप ऐसे प्लेन ले सकते हो? नो सर। नहीं ले सकते, No, क्योंकि sir. अगर इससे यहाँ से रिफ्लेक्शन करोगे तो इसकी मिरर इमेज ऊपर नहीं है, तो आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। सो इन दिस केस ओनली 2 sigma V are there. See, this is one which bisect molecule which is passing through oxygen atom, and this is second. पहले ये प्लेन देख लो, अगर ये प्लेन आप अप्लाई करोगे तो ये प्लेन ऑक्सीजन में से पास होता है, तो जो एटम प्लेन में कवर होता है वो एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको? इसका रिजल्ट आपको लिखना है तो इक्विवेलेंट, दैट मींस H1 जो हाइड्रोजन है 1 है वो 2 की जगह जाएगा, 2 है वो 1 की जगह, इसी तरह। सी ओके, जब आप ये प्लेन अप्लाई करते हो तो क्या होगा? 1 2 की जगह जाएगा, 2 1 की जगह, इसी तरह। दूसरा प्लेन ये है मिरर प्लेन के जो सब, सॉरी ये के मिरर प्लेन है, दूसरा ये प्लेन है ब्लू वाला जो सब एटम को कवर करता है, तो एक भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। तो टोटल प्लेन है ये। सपोज BF3 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आप ये प्लेन अप्लाई करोगे तो 2 and 3 एक दूसरे की पोजीशन चेंज करेंगे, ऐसे ऐसे। सी ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिग्मा V प्लेन। लुक एट हियर, प्लस साइन दिया है। अगर आप C2 सिग्मा V ये अप्लाई करते हैं तो कैसे रिजल्ट मिलेगा बताइए? ये सिग्मा V है, सब एटम को कवर करता हुआ प्लेन। व्हाट इज रिजल्ट? सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि सारे एटम प्लेन में है। बट एक चीज आप लिख सकते हो, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स जो प्लेन के आगे वाला पार्ट है वो पीछे चला जाएगा, पीछे वाला पार्ट है वो आगे आ जाएगा, इसलिए प्लस का माइनस साइन लिखा है। बाकी कुछ चेंजेस नहीं होता क्योंकि इस एटम इस मॉलिक्यूल में प्लेन के आगे कुछ है ही नहीं, तो पीछे जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सब एटम है वो इट इज इन द प्लेन।
1 एटम 2 एटम्स ऑक्सीजन सारे एटम्स इन द प्लेन में है तो वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, बट प्लस माइनस इसलिए लिखा है जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव। कोई अगर एटम सपोज प्लेन की फ्रंट साइड में है तो उसकी मिरर इमेज बैक साइड में दिखाई देगी। दूसरा ये है, तो ऐसे दो सिग्मा प्लेन है, वन इज सिग्मा V1 एंड सेकंड वन इज सिग्मा V2। What is diagonal plane? See, it is very, very important. Before going to check it, first of all, you just read here. Plane which is parallel to principal axis is called, what do we call it? It is not a horizontal. Plane which is parallel to principal axis is called vertical plane. It may be more than one in number. एक से ज्यादा हो सकते हैं vertical plane, but sigma h तो एक ही था. C2 lies at boundary of the sigma h and sigma v were joined together. दो प्लेन अगर पॉसिबल है सिग्मा एच एंड सिग्मा वी, तो वो दोनों प्लेन जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहां C2 एक्सिस आएगी, वो बाद में देखेंगे। Now what is diagonal plane? So it is again type of mirror plane. So if there are more than one type of sigma v plane is present, see diagonal plane is ultimately nothing but it's a sigma v. सिग्मा v का ही एक टाइप है, बट उसको डायगोनल कब बोलेंगे? सो इफ मोर देन सिग्मा v planes presence in the molecule, then the plane which is passing through minimum number of atom and dividing the two C2 axis, दो C2 axis अगर है तो उनको राइट एंगल पे डिवाइड करता है एंड मिनिमम नंबर ऑफ एटम में से पास होता है, ऐसे प्लेन जो है उनको बोलेंगे सिग्मा डी, डायगोनल प्लेन। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम में से पास होता है प्लेन तो उसको बोलेंगे सिग्मा वी। ये डिफरेंस है। डायगोनल प्लेन इज अल्टीमेटली नथिंग बट सिग्मा डी इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ सिग्मा वी, बट किस केस में इसको सिग्मा डी बोलेंगे? तो वो दो C2 एक्सिस को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है अगर पॉसिबल है तो, और इट इज पासिंग थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ एटम, और यू कैन से जो सामने वाला एटम है उसको कंबाइन करते हैं ऐसे प्लेन। सपोज ये 1 नंबर 2 3 एंड 4 है तो इसको कंबाइन करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, ये प्लेन, दिस इज कॉल्ड सिग्मा डी। Alene molecule is a best example of the diagonal plane. Here what you can do, आपको भी एलिन तो पता ही है, जो चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि तो एलिन molecules है जो दे आर रिमेन्स, एलिन मोलिक्यूल में से हमने देखा था कि दे रिमेन्स एट 90 डिग्री टू वन अनदर, विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। जो दो ग्रुप है टर्मिनल ग्रुप एलिन में, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे रहेगा ऐसे। So look at here. This is a platinum Cl4 types of molecules. See this is sigma, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है सिग्मा V, ये भी है सिग्मा V। अब इस केस में यहाँ सपोज आई विल ड्रॉ, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ एलिन मोलिक्यूल। से एलिन ये टर्मिनल दोनों हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पे रहेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे रहेंगे। तो यहाँ जो ऐसे प्लेन आएगा, ये प्लेन, दिस टू प्लेन व्हिच बाइसेक्ट द C2 एक्सिस, ये दोनों प्लेन है वो सिग्मा डी है। इस केस में से ये जो एक्सिस है पासिंग थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, दिस इज कॉल्ड C2 एक्सिस, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो C2 है आपकी, ये C2, दिस इज कॉल्ड सिंपल C2 एक्सिस। और एक और C2 है इसमें जो आपकी साइड रहेगी। तो ये दोनों C2 के बीच में जो एंगल है इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता हुआ ये प्लेन है। सो दिस इज कॉल्ड सिग्मा डी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पासिंग थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम।
ये दोनों एक ही एटम में से पास होते हैं, तो इसको सब्सिडियरी एक्सिस बोलेंगे। अगर आपको 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल्स देखना है तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ सपोज आप हाइड्रोजन यहाँ इंडिकेट करते हो, सपोज सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ से एक हाइड्रोजन आप ऐसे लेते हो, यहाँ हाइड्रोजन, इसकी डायगोनल पोजीशन ये होगी, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ ज्वाइंट होता है हाइड्रोजन यहाँ होगा, इसकी डायगोनल पोजीशन यहाँ पे आएगी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, इसके डायगोनल पोजीशन ये आएगी, इनकी अगेन ये आएगी। So see, this is a structure of alien molecules. इस मॉलिक्यूल को आप देखोगे तो ये देखो, ये बॉक्स है आपके पास, जो क्यूबिक बॉक्स होता है, ऐसे बॉक्स के जो सामने वाला जो कॉर्नर है वहां पे एटम से सी, तो इसमें से पास करोगे तो ये दोनों अपने मिरर इमेज देंगे ऐसे, यहाँ से पास करोगे प्लेन तो ये दोनों मिरर इमेज देंगे। इट्स अ क्यूबिक बॉक्स, इट हैज C2 सिग्मा D। सेम चीज यहाँ पे बताई है। C2 एक्सिस कौन कौन सी है वो बताइए। फर्स्ट C2 एक्सिस जो है H1 H2 H3 एंड H4, इसको नेम दे दो। यहाँ पे देखो, वेर इज C2 एक्सिस। ओके, सो सपोज H1 यहाँ पे लेते हैं हम, बोलेंगे इसकी डायगोनल पोजीशन ये हो जाएगी, यहाँ पे H2 लेते हैं, यहाँ H3, ये डायगोनल पोजीशन है। H3 एंड यहाँ पे इसकी डायगोनल पोजीशन ये आएगी, इसके सामने वाले। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ H4 आएगा, ये वाला, ये दोनों गलत लिखा है। एक्चुअली वो डायगोनल पोजीशन नहीं है, इसको चलो लिखना पड़ता है। यहाँ H1, बॉक्स गलत है। एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, यहाँ जो बॉक्स दिया ना उस तरह, इसलिए ये बॉक्स को ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब आ जाएगा। अभी देखो, ये जो है आपके डायगोनल पोजीशन है, एक ये H1 यहाँ पे है, इसके डायगोनल पे H2 यहाँ पे है, H3 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, H4 जो है इसकी डायगोनल पोजीशन ये आएगी यहाँ पे। ओके, इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस देखना है, कौन कौन सी C2 एक्सिस है।
चलो आप AC2 एक्सिस लेंगे तो कौन कहाँ पे जाएगा? अब बताओ, AC2 एक्सिस से आप 180 पे रोटेशन देते हो तो H1 कहाँ पे जाएगा? आपके पास जो पूरा एक बॉक्स है, इसको आप घुमाते हो ऐसे से, ये बॉक्स को, तो इसके एक दूसरे की जो कॉर्नर है वो कहाँ पे जाएगी? सर 180 वाली कॉर्नर बताओ, H1 कहाँ पे जाएगा, किसकी जगह जाएगा? सर H2 के जगह। H2 की जगह, जो वही प्लेन है उसमें से ये जो एक साइड आप कंसीडर कर लो, उस साइड पे ऐसे, ये जो साइड है ये आपकी पूरी साइड, इस साइड पे जो H1 एंड H2 एक दूसरे को 180 पे है, सी तो बॉक्स को जैसे ही आप घुमाओगे यहाँ पे बीच वाली एक्सिस से, तो H1 90 पे यहाँ पे आएगा, बट 180 पे H2 की जगह आ जाएगा। ओके, so H1 and Yes. H2 can change their position, and H3 and H4। H4, this is C1 C2 axis. What's about this one? चलो ये एक टाइम में से पास होते हुए इस सेंटर में लगे, इस साइड के जो सेंटर है वहां से पास होते हुए C2 एक्सिस लगे, तो क्या होगा? H1 कहाँ पे जाएगा? वहां से आप मॉलिक्यूल को ऐसे H4 घुमाते की हो, जगह। इसको ऐसे घुमाते हो तो H1 4 की जगह आ जाएगा, 4 इनकी जगह, तो H1 एंड H4, दूसरा जो है वो 2 and 3। चलो थर्ड जो है C2 एक्सिस, दैट इज ऑन योर साइड वाला प्लेन जो है वो ये रहेगा, मैं बता दूं वो अभी, ये प्लेन, ये प्लेन है सी, ये पूरा प्लेन है जो आपकी साइड दिखाई देती वो, तो एक्सिस तो मैंने इस प्लेन में ले लिया, इस मोबाइल का जो, तो आपका लैपटॉप स्क्रीन का जो प्लेन है उसमें, बट ये थर्ड प्लेन है जो आपकी साइड रहेगा, इसके बीच में से पास होते हुए एक्सिस, तो उस केस में क्या होगा? ये एक्सिस आप लगे यहाँ से सिर्फ इसमें से पास होते हुए, सो इन दिस केस कौन एटम कहाँ पे जाएगा? ये एक्सिस आपकी साइड एक्सिस, इसको घुमाओ, चलो कौन एटम कहाँ पे जाएगा? H2 कहाँ पे जाएगा? सर H4 के जगह। H3 की जगह। H2 एंड H3 नहीं, सॉरी H3 कहाँ पे है? H4 है आपकी साइड, सी H4। H2 एंड 4 है, ये फ्रंट वाला प्लेन मैंने देखा है, बॉक्स है 3 डायमेंशन, ये 3 तो पीछे की साइड है, सी ऐसे देखो। ओके, मैंने जो ऐसे आपको ये प्लेन यहाँ पे ऐसे मार्क किया है, यहाँ देख लो, एक डार्क लाइन वाला जो प्लेन है ना, वही प्लेन यहाँ पे मार्क करते हैं। ये एक प्लेन है, सी ये पीछे वाला प्लेन है, समझ लो। ये आपका एक आगे वाला प्लेन आ गया, सॉरी पीछे वाला नहीं, ये प्लेन, और इनके पीछे बिल्कुल ये प्लेन है, ए बी सी और डी को कवर करता हुआ। ओके, इसी तरह यहाँ पे सी ये सारे एटम को हमने कलर पार्ट कर दिया, वो वन प्लेन है, बाकी जो ये है पीछे का प्लेन है, ये पीछे का प्लेन है पूरा, बताओ इसको, ये पीछे वाला प्लेन है, सी सो नाउ H2 4 की जगह आपके पास सपोज तो जो ऐसे जो बॉक्स आता है ना, और वो गेम एक आती है, वो क्यूब वाली गेम, उसको आप मद्देनजर रखते हुए, उसको सामने रखते हुए आप उसको रोटेट करना अलग अलग साइड से, तो पता लग जाएगा कि ये जो आपकी फ्रंट साइड है ये बैक साइड है, तो फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड रोटेशन होगा, H2 4 की जगह जाएगा, 4 2 की जगह, और ये 1 पीछे है, 3 भी पीछे के प्लेन में है, तो 1 and 3 कैन चेंज देयर पोजीशन, सी तो अभी पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चलेगा कि इस C2 में 1 and 2 पोजीशन चेंज करता है, इस C2 में 1 and 3, एंड इसमें 1 and 4, तो सारी C2 अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि सब में आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है। अगर ये C2 कंसिडर करते तो 1 and 2 चेंज देयर पोजीशन, ये C2 में 1 and 3 कैन चेंज देयर पोजीशन, इस C2 में 1 and 4,
तो सारी पॉसिबिलिटीज आपने यहाँ पे जो है उसको आपने सोच लिया, तो उस हिसाब से आपको 3 C2 मिलती है। 3 में से 2 C2 जो है वो नॉर्मल है, सब्सिडरी है, एंड 1 C2 इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये आपका डायगोनल प्लेन चाहिए तो C2 को बाइसेक्ट करता हुआ या सामने वाले एटम को कवर करता हुआ प्लेन लेना है। फर्स्ट प्लेन इज पासिंग थ्रू एटम नंबर 1 and 3 ऐसे, and 2 and 4 ऐसे डायगोनल प्लेन आएगा चाहिए। दिस इज ए डायगोनल प्लेन 1 and 2 and 3 and 4. So this is called diagonal plane. Okay? ऐसे आएगा सामने डायगोनल पोजीशन को कवर करता हुआ प्लेन। क्लास सिमेट्री एलिमेंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आई है। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आई का मीनिंग ये है कि ऐसा पॉइंट कि उसके इक्वल साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। ये मॉलिक्यूल है, सीस ज्योमेट्री है, यहाँ आप आई कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ जितने डिस्टेंस पे Cl है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे Cl है, बट they are not in opposite direction. I की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट फ्रॉम विच at equal distance on opposite side equal number of atoms are present. अपोजिट साइड होनी चाहिए। अब ये तो सेम साइड में है दोनों सेल, तो यहाँ यू कैन नॉट कंसीडर आई, बट यहाँ पे आप आई ले सकते हो। क्यों? यहाँ जितने डिस्टेंस पे Cl है इस साइड में, तो उतने ही डिस्टेंस पे उसके अपोजिट साइड में भी Cl है। सो ट्रांस स्ट्रक्चर में आई ले सकते हो, सीस में यू कैन नॉट हैव आई। CO2 में भी आई है। BF3 में आई ले सकते हो, यस और नो? No, sir. नो, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस पे है बट दे आर नॉट इन अपोजिट साइड। F1 यहाँ पे है तो इसके सामने यहाँ F नहीं है, यहाँ भी F नहीं है। ओके, सो अपोजिट साइड में नहीं है, सो यू कैन नॉट हैव आई। व्हाट्स अबाउट इन प्लेटिनम Cl4? Yes, sir. यहाँ आप आई ले सकते हो। यहाँ पे आप आई कंसीडर करोगे तो अपोजिट साइड में इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। So this is a fourth symmetry element. See what happens once you apply I? कौन कौन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे AN स्ट्रक्चर में? कौन कौन से एटम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे? AN B B. and 1 and 2 ऐसी तरह से। This is 1 and 2 and A and B. That is called I operation, दोनों साथ में करेंगे। Yes, in this way 1 and 2 A and B and 1 and 2। अभी एक एलिमेंट और बाकी है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। इट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। यहाँ 2 स्टेप आपको साथ में करना है। कौन कौन से 2 स्टेप्स? फर्स्ट आपको प्रॉपर रोटेशन Rotation and reflection. या रोटेशन देना है, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। Reflection. रिफ्लेक्शन एट एंगल 90 डिग्री टू रोटेशन एक्सिस। सपोज ये H2 है, यहाँ पे आपको सपोज आप ऐसे नॉर्मल प्रोसेस करते हैं तो इसको C2 बोलते हैं। आप सपोज इसको रोटेशन देते हैं 180 पे, सो दिस इज कॉल्ड C2। ये प्रॉपर रोटेशन एक्सिस हो गई, दिस इज ए प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। बट S2 करना है तो क्या करोगे आप? पहले आप रोटेशन देके तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके बाद आपने ये एक्सिस से रोटेशन दिया तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन लगे। अब कंपेयर करो, ये इसको बोलते हैं S2। रोटेशन एक्सिस का यहाँ पे ऑर्डर 2 था इसलिए इसको S2 बोलते हैं। नाउ यू टेल मी, कैन यू टेक दिस वन? No, sir. नो लेस, आप No, sir. इस एक्सिस को आप नहीं ले सकते। क्यों? रीजन, व्हाट इज रीजन? रीजन इज Equivalent structure नहीं है. या यू आर नॉट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल, और यू कैन नॉट हैविंग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है उसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए यू कैन नॉट टेक दिस एक्सिस। बट इसमें ऐसी, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। दिस इज ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, CH4 or any other geometry. So this is very good example where the C2 axis is there. अभी यहाँ पे
ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझ लो, ज्योमेट्री ऐसे है वैसे बेसिकली। और आपने क्या किया, ये दोनों को पेयरिंग कर दिया, ए और बी और सी और डी, उसमें से बीच में से पास होते हुए ऐसे एक्सेस ले लिए। वैसे बेसिकली टेट्राहेड्रल में क्या है, ये एटम जो है वो किस साइड है, सपोज हम आपके मोबाइल स्क्रीन का प्लेन कंसीडर करते हैं तो ये जो एटम है वो कहाँ पे है, बैक साइड, फ्रंट साइड, और ये एटम बैक साइड, एक साइड। दोनों एक दूसरे को कितने एंगल पे है, 90 है, 180, 180 एंगल पे है। 180। और ये एटम जो है वो किस साइड है, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड। अभी आप चलो यहाँ C2 एक्सिस अप्लाई करते हो, 90 डिग्री पे रोटेशन देते हो तो क्या होगा, ए और बी इनको सी और डी बोल दो। चलो ए कहाँ पे जाएगा 90 डिग्री पे, ये कहाँ पे आ जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेट करना है? 90 डिग्री है तो वेदर यू आर गिविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ रिजल्ट में फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर सामने आ जाएगा। सामने नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो पीछे की साइड है ये, और बी है वो फ्रंट साइड पे है, तो वो दोनों कहाँ पे नहीं सर, रहेंगे, राइट और लेफ्ट साइड। वही। ओके, सो एक जो एटम है पीछे की साइड है वो राइट साइड पे चले जाएगा या तो लेफ्ट साइड। ओके, दैट इज गुड। सो सी यह क्या हुआ, सपोज आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हो तो ये पीछे की साइड है वो कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री है, सॉरी फर्क पड़ने वाला है, 180 पे प्लस और माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो रोटेशन इज गिवन एट अबाउट C4 एक्सिस, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये कहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री पे, सर लेफ्ट, लेफ्ट साइड, और ये कहाँ पे आ जाएगा बी, राइट साइड, राइट साइड। जो आउट ऑफ प्लेन थे वो इन दी प्लेन आ गए, और ये जो है सी एंड डी वो प्लेन में थे, ये जो सी है वो राइट साइड था वो पीछे की ओर चला जाएगा, और ये डी जो है वो फ्रंट साइड आ जाएगा। बट ये तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है नहीं, इसलिए आप ये C4 नहीं ले सकते। C4 यू कैन नॉट टेक दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है ये HCH जो मीथेन है उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस ये पीछे की साइड है, ये आगे की साइड, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये और C3 एक्सिस है। इन नीचे वाले तीनों एटम में वो एक दूसरे को 120 एंगल पे है, ये भी C3 है, सारी एक्सिस C3 है, इसमें 4 C3 है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें C4 नहीं है। बट हम तो S4 सोच रहे हैं कि S4 है या नहीं, तो इसलिए ये आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिला है डेफिनेटली, बट दिस इज हाफ प्रोसेस, आपने पूरी प्रोसेस कंप्लीट की नहीं है। पहले आपको S4 चेक करना है, इसलिए आप क्या करोगे, C4 को रोटेशन देके फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। रोटेशन तो दे दिया आपने, अभी ये रिफ्लेक्शन प्लेन कंसीडर करके उसका रिफ्लेक्शन करना है। सो दो नीचे है वो ऊपर दिखाई देंगे, ऊपर है वो नीचे ऐसे, तो ये जो पीछे की साइड यहाँ बैक साइड सी था वो यहाँ ऊपर भी बैक साइड ही दिखाई देगा, ये फ्रंट साइड रहेगा डी, और ए और बी जो आपका है वो राइट, लेफ्ट एंड राइट था वो यहाँ पे आ जाएगा, ए एंड बी। अभी आप कंपेयर करो स्ट्रक्चर 1 एंड 2, दे आर आइडेंटिकल और नॉट, सब एटम सेम ही है, आइडेंटिकल सर। दे आर इक्विवेलेंट। equivalent structure है, so therefore this axis is called S4, इसको हम S4 बोलेंगे, S4 से रोटेशन किया है ऐसा बोलेंगे। सो दिस इज अबाउट इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो किया है, ये दोनों एक प्लेन में, ये फ्रंट वाला प्लेन है जो भी मैंने आपको बताया था वो 1, 3 एंड 2, और ये पीछे वाला प्लेन है वहां पे 1 एंड 4 है बैक साइड में। आपको 90 डिग्री पे रोटेशन देंगे तो क्या होगा, इसमें 1 कहाँ पे जाएगा 90 डिग्री पे, ये पूरा 90, ये जो सर्कल है ये 1 और 2 के बीच में एंगल 180 का है, बट अभी आप 90 डिग्री पे रोटेशन देंगे तो 1 कहाँ पे जाएगा, साइड वाले कॉर्नर पे। यहाँ पे है ना, ओके फाइन। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ 2 आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे, ऐसे। ये तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बट बाद में आप क्या करोगे, बाद में आप रिफ्लेक्शन। अबाउट दिस प्लेन, तो ये 1 कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ये यहाँ पे है वो, इसका मिरर इमेज यहाँ पे मिलेगा, ये 4 है ये यहाँ पे होगा, ये 2 है इसकी मिरर इमेज यहाँ पे मिलेगी, 3 है उनकी यहाँ पे, तो ऐसे रिफ्लेक्शन आएगा।
अभी देखो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो गया. सो दिस इज कॉल्ड 1 times CS4. से सेकंड टाइम S4 करो. हम तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं. तो 4 यहाँ पे आ जाएगा. 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसी तरह. और उसके बाद क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन. So this is a structure. So now you tell me how many times if you applying S4 then you are getting identical structure. ये अभी 2 बार हो गया प्रोसेस. चलो ऐसी प्रोसेस कितनी टाइम्स करनी पड़ेगी तो आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा? थर्ड टाइम वी आर ट्राइंग. ये 2 यहाँ पे आ जाएगा. सी ओके, 1 यहाँ पे आ जाएगा. रोटेशन देंगे तो उसके बाद क्या करोगे? रिफ्लेक्शन. तो ये 2 यहाँ आ गया, वो यहाँ नीचे रिफ्लेक्ट होगा. दोनों प्रोसेस साथ में कर दिया है. दिस इज 3 टाइम्स. अब 4 टाइम्स करोगे तो क्या होगा? आइडेंटिकल है. Identical. ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और इनकी मिरर इमेज यहाँ नीचे मिलेगी. ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और इनकी मिरर इमेज यहाँ नीचे मिलेगी. 1 यहाँ पे आ जाएगा, इनकी मिरर इमेज ऊपर मिलेगी. ऐसे तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा. सो आप ऐसा भी लिख सकते हो S4:4 is equal to E. So this is called see improper rotation axis. इसमें भी S5 ऐसी ये फेरोसिन का स्ट्रक्चर है. एक रिंग आगे की साइड है, एक रिंग पीछे की साइड है. तो यहाँ से आप रोटेशन देंगे 90 C5 एक्सिस से, तो 1 जो है वो 2 की जगह आ जाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में. ये सब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे. उसके बाद क्या करोगे आप? रिफ्लेक्शन जो है दोनों के बीच में से जो प्लेन पास होता है उससे. इसी तरह आप उसके बाद रिफ्लेक्शन करोगे. AC5 और ये रिफ्लेक्शन प्लेन हो गया. तो ये पीछे वाले आगे आ जाएगी, आगे वाले एटम पीछे आ जाएंगे. इसी तरह येलो वाले हैं वो पीछे चले जाएंगे और ब्लू वाले आगे आ जाएंगे. इसी तरह सेकेंड टाइम्स, थर्ड टाइम्स, फोर्थ टाइम्स, फिफ्थ टाइम्स. टाइम 7 टाइम, 8 टाइम, 9 एंड 10. इस केस में आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कब मिलेगा? कितने टाइम्स रोटेशन देंगे तब मिलेगा? S5 से 10 टाइम. 10 टाइम्स. आप चेक कर लेना. then you are getting equivalent structure. So this is about the basic 7 symmetry element. Now in the next lecture we will going to discuss point group, very important topic, how to decide molecular point group. So thank you very much for joining. Thank you, sir. Thank you. Sir,